देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ଆଜିଠାରୁ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜିଠାରୁ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 15.21 ଲକ୍ଷ ପିଲା କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେବେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 15.47 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 2010 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଟିକା ନେବେ। ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣିକି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆଧାରରେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। 28 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ 2ଟି ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ କମ୍ପାନୀ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋର୍ବେଭାକ୍ସ ଟିକା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଏହି ଟିକା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଦେବାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନମ୍ବର 2, ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ହେବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଏଣିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର 430ଟି ୟୁନିଟ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 314ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସିଏସ୍ସିରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ 116ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ୟୁନିଟ୍କୁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଘରେ ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଦେୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 3, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ମଦ ବାରଗୁଡ଼ିକରେ ବାଉନ୍ସର ମନା। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଥିବା ମଦ ବାରଗୁଡ଼ିକରେ ବାଉନ୍ସର ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାର୍ ମାଲିକମାନେ କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକଠୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ବାର୍ରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ଏହି ମଦ ବାରଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବାଉନ୍ସରମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ନଭେମ୍ବର 1ରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୁଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଅନୁରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା 2 ମାସ ପାଇଁ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣିଥରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରୁ ମଇ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମଦବାରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷାରେ ତାର ମାଲିକମାନେ ବାଉନ୍ସର କିମ୍ବା ନିଜସ୍ୱ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁ ଅପରାଧ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ନିକଟ ଅତୀତରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 4, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ। କେବଳ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏବେ ଗାଈ ଗୋରୁ ତଥା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଔଷଧ ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଧୀନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, କ୍ଷେତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁକୁ ଔଷଧ, ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିଥାଏ। ତେବେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ ଔଷଧ ଯୋଗାଣକାରୀ ଫାର୍ମମାନେ ଟେଣ୍ଡରରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ସେ ହିଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଯୋଗାଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ତାତି, ଅସହ୍ୟ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ତାତି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଇଏମ୍ଡିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି 17 ତାରିଖ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖରା ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ଯାଏଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 6, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଡ଼ ଗୋଟଉଛି ବାତ୍ୟା। ଛାଡ଼ୁନି ବାତ୍ୟା ଭୟ, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ହେଲେ ବାତ୍ୟାର ଯେକୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ବଦଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମଡେଲ
अनुसार आसंता 20 तारिख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा संभावना अच्छी। यह क्रमशः घनीभूत हो उत्तर बंगोपसागर में पहुंचो हेले यार गतिपथ और तीव्रता किसी जमापड़ी ना। धीरे धीरे बात्यार स्पष्ट चित्र आसव। नंबर 7 रूस रु रिहाती दर में 3 न्यूज बैरेल तेल किणिला भारत। रूसिया ठारू रिहाती दर में प्राय 3 न्यूज बैरेल तेल किणी भारतर राष्ट्रीय तैल कंपानी इंडियन ऑयल। रूस कंपानी भिटोल ठारू किणा जाइथिबा एही तेल आसंता मे मासरे जोगाण हेबो। यूक्रेन उपरे आक्रमण करिबा परे अमेरिका समेत पाश्चात्य राष्ट्र माने रूस उपरे कठोर आर्थिक कटकणा लगेइछंती। फଳରେ अमेरिका और यूरोपर प्रमुख तैल कंपानी माने रूसियारू तेल किणिबा बंद कर देइछंती। या फଳରେ रूसिया रिहाती दर में तेल बिकिबाकू भारत चीन प्रभृति देशमानकू प्रस्ताव देइथिला। भारतीय टंकारे एही तेल पई पेमेंट कराजिबार संभावना रहिछि। एही तेल क्रय जोगु भारत उपरे पाश्चात्य देश कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण न करिबार संभावना रहिछि। कारण रूस उपरे जो कटकणा लग जाइछि सेथिरे तेल को अंतर्भुक्त करा जाई नाही। एही कटकणारू जर्मनी प्रभृति केतेक यूरोपीय देश एबे भी रूसिया रे तेल किणिबा अब्याहत रखिछंती। नंबर 8 कांग्रेस छाड़ंतु गांधी परिवार कहिले कपिल सिब्बल। गांधी परिवार कांग्रेस गादी रो हटि जिबा दरकार, अन्य मानकु सुजोग देबा आवश्यक। कांग्रेस कार्यकारी बैठक रे सोनिया गांधी को नेतृत्व पर दृढ़ विश्वास जारी करिथिबा बेले कपिल सिब्बल किंतु देइछंती विस्फोरक मंतव्य। एबे सिब्बल कहिछंती गांधी परिवार कांग्रेस रो गादी रो हटि जिबार एहा हेउछि प्रकृत समय। निज इच्छा से क्षमतारू दूरे जावा आवश्यक। गादी छाड़ी से जड़े नुआ नेता पई रास्ता परिष्कार करने उचित। कारण तांका द्वारा गढ़ा जाइथिबा टीम एपरी उपदेश केबे भी गांधी परिवार सदस्यों को देवनी। सीडब्ल्यूसी बाहर मध्य एक कांग्रेस अछि, तेणु दयाकरी सेमानक चिंताधारा मतामत को भी शुणिबा गुरुत्व देवा आवश्यक। सीडब्ल्यूसी भारत में कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधित्व करुछि, किंतु यह ठीक नुहे। समग्र देश में बहुत कांग्रेस रही। शेष निश्वास पर्यंत समस्त कांग्रेस पई लड़ी जारी रखिबी। नंबर 9 यूक्रेन रु फेरीथिबा शिक्षार्थीଙ୍କ ପାଇଁ बड़ घोषणा कले केसीआर। युद्ध जोगो अधरू मेडिकल पाठ्यक्रम छाड़ी यूक्रेन रु फेरीथिबा शिक्षार्थीଙ୍କ ପାଇଁ बड़ घोषणा करिसंती तेलंगाना सरकार। यूक्रेन रु राज्य को फेरीथिबा 700 रु अधिक शिक्षार्थीଙ୍କ पाठपढ़ा खर्च एणिकी तेलंगाना सरकार वहन करिवे। एथिसह सेमानकु सब प्रकारर सहायता जोगै दियाजिबो बोली सरकार कहिसंती। तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव निजे ए संपर्क में घोषणा करिसंती। अधरू पाठपढ़ा छाड़ी भारत चली आसिथिबा पिलामानक भविष्यत नै आशा आशंका देखा जाउथिबा बेले केसीआर एपरी निष्पत्ति को विभिन्न महल में स्वागत करा जाइछि। नंबर 10 पाकिस्तान रे मिसाइल पड़िबा घटना उच्चस्तरीय तदंत हेबो। भारतर मिसाइल दुर्घटनावशतः पाकिस्तान रे पड़िबा घटना नहीं राज्यसभा में मंतव्य रखिछंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 9 मार्च 2022 संध्या 7टा बेले मिसाइल सिस्टम मेंटेनेंस बेले गोटे मिसाइल दुर्घटनावशतः पाकिस्तान रे पड़ीथिला। यह अत्यंत दुखद बोली कहिसंती प्रतिरक्षा मंत्री। तेबे एथिरे काहारी कोनोसी क्षयक्षति होई नाही। घटना को सरकार गंभीरतार सह नैछंती। उच्चस्तरीय तदंत पई निर्देश दिया जाइछि। जांच परे काहींके बड़ी घटना घटिला तार सठिक कारण जणा पड़िबो। तदंत बेले जदि किछि असुविधा थिबा जणा पड़िबो तेबे एहाकु दूर कराजिबो बोली कहिसंती राजनाथ। अस्त्र शस्त्र मिसाइल रक्षणाबेक्षण पई थिबा एसओपी र समीक्षा कराजिबो। आम अस्त्र शस्त्र अत्यंत सुरक्षित और डिफेन्स सिस्टम भरोसायोग्य। एभली परिस्थितिर मुकाबिला पई आम सशस्त्र बाहिनी तालीम प्राप्त बोली राज्यसभा कहिसंती राजनाथ। नंबर 11 पौर निर्वाचन पर 22 तारिख अपराह्न 5टा पूर्व सरीब प्रचार। आसंता 24 तारिख में सारा राज्य में पौर निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले 22 तारिख अपराह्न 5टा पूर्व समस्त प्रचार शेष हेबो। एपरिकी एही समय पर निर्वाचन हेउथिबा अंचल में कौनसी व्यक्ति सभा बैठक आदि करि परिबे नाही। निर्वाचन शेष हेबार 48 घंटा पूर्व एही कटकणा लागू हेबार नियम थिबारु एने जिलापाल माने व्यापक प्रचार करबाकू राज्य निर्वाचन कमिशन सचिव रविंद्रनाथ साहू समस्त जिलापालଙ୍କୁ चिठी लिखिछंती। नंबर 12 आरंभ है बागची करुणासर बहिर्विभाग सेवा। इन्फे भैली 2 रे बागची करुणासर उपशम चिकित्सा केन्द्र निर्माण कार्य जारी रही। हेले यार अब्याहति पूर्व संस्था गंडमुंडाठारे यार अस्थायी सेवा आरंभ कर सारे। सेठारे एबे बहिर्विभाग बा ओपीडी चिकित्सा आरंभ होईछि। गुरुतर पीड़ित रोगी घर को जाई चिकित्सा सेवा जोगैबा लागि एही केन्द्र खोला जाइछि। एथिपई आवश्यक डाक्तर नर्स फार्मासिस्ट गाड़ी और आनुषंगिक व्यवस्था करा जाइछि। चलित मासरू प्रति सप्ताह शुक्रवार दिन चिकित्सा औषध जोगै दिया जाउथबा सरकारी सूचना मिली। नंबर 13 हिजाब मामला राय शुणिले कर्नाटक हाईकोर्ट। हिजाब विवाद मामलार शुणाणी करिसेंती कर्नाटक हाईकोर्ट। हिजाब विवाद मामलार समस्त आवेदन को कोर्ट खारज कर देइछंती। हिजाब धर्मर प्रमुख अंश नुहे बोली कर्नाटक हाईकोर्ट विवादीय राय देइछंती। तासह से कहिसंती स्कूल यूनिफॉर्म पिंधिबाकू मना करि परिबे नाही छात्र छात्री। छात्रीक आवेदन को कोर्ट अग्राह्य करी कहिसंती जे हिजाब धर्मर एक बाध्यतामूलक अंश नुहे। इस्लाम रे हिजाब पिंधिबा बाध्यतामूलक नुहे बोली कोर्ट कहिसंती। फेब्रुआरी 25 रे कर्नाटक हाईकोर्ट एही मामलार शुणाणी करिथिले। कोर्ट मध्य यार निष्पत्ति को संरक्षित रखिथिले। नंबर 14 हिजाब विवाद हाईकोर्टक राय विरोध में सुप्रीमकोर्ट रे आवेदन।
कर्णाटक में देखा जाइथिबा हिजाब विवाद एवं सुप्रीमकोर्ट में पहुंची। काली कर्णाटक हाइकोर्ट स्कूल रे हिजाब पिंधिबो परे लागिथिबा बयान को कायम रखिथिले। या परे उडुपीर 6 जण मुस्लिम शिक्षार्थी राय विरोध में सुप्रीमकोर्ट को द्वारस्थ होइछंती। मुस्लिम छात्री निबन आजंग पक्षरु मध्ये गोटे स्पेशल लीव पिटिशन आगत कर जाइछि। आवेदनकारी कहिसंती कर्णाटक शिक्षा आईन शिक्षार्थी पई कोनोसी ड्रेस कोड बाध्यतामूलक करि नाही। सेहीपरि गोपनीयतार अधिकार मध्ये हिजाब रे आसुछि। एहाकु हाइकोर्ट विचार को नै नाहंती। धर्मर स्वाधीनता और विवेकर स्वाधीनता मध्ये थिबा पार्थक्य को बुझिबारे हाइकोर्ट त्रुटि करिसंती। गोटे निर्दिष्ट धर्म को अनुसरण करुथबा लोकंक विवेकर स्वाधीनता नाही बोली कोर्ट हृदयंगम करिसंती। तेणु सुप्रीमकोर्ट एथिरे हस्तक्षेप करंतु बोली आवेदनकारी माने अनुरोध करिसंती। नंबर 15 बाइडेन और 12 टॉप अमेरिकी अधिकारी उपरे कटकणा लगैला रूस। यूक्रेन उपरे घन घन हमला करुथबा रूस एवं अमेरिका विरोध में बड़ पदक्षेप नहीं। युद्धकर आचरण पर अमेरिका पक्षर रूसर वरिष्ठ अधिकारी कंपानी खेयाड़ी और मस्को उपर एकाधिक कटकणा लग जाइथिला। एबे रूस पाल्टा पदक्षेप नहीं। जेसा को तेसा नीति रे रूस सरकार अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 13 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी उपरे प्रतिबंधक लगेइछंती। एमानंकु स्टॉप लिस्ट रे स्थान दिया जाइछि। एहार अर्थ तालिकारे थिबा लोक माने रूस रे प्रवेश करि परिबे नाही। सेहीपरि सेमानक सह रूस अधिकारी माने कोनोसी प्रकारर व्यक्तिगत कथाबार्ता करि परिबे नाही। नंबर 16 25 रे बीजेडी विधायक दल बैठक। आसंता 25 तारिख विधानसभा 6 दिनिया अधिवेशन आरंभ होउथिबा बेले शासक बीजेडी उक्त दिन विधायक दल बैठक डाकिछि। स्वल्पकालीन विधानसभा अधिवेशन में शासक दलर रणनीति प्रसंग में बैठक में आलोचना हेबो बोली जणा पड़िछि। सरकारी मुख्य सचेतक प्रमीणा मल्लिक ए संपर्क में सूचना देई कहिसंती जे मार्च 25 तारिख सकाळ 10:30 टारे बीजेडी विधायक दल बैठक विधानसभा 54 नंबर प्रकोष्ठ में अनुष्ठित हेबो। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार बैठक बसिबो। तेबे 25 तारिख सकाळ 11टारे राज्यपाल अभिभाषण सह विधानसभा अधिवेशन आरंभ हेबाकु थिबारु बीजेडी विधायक दल बैठक स्वल्प समय पई बसिबो बोली स्पष्ट होईछि। नंबर 17 नेटफ्लिक्स अमेजन को टक्कर देबाकु आसुछि एसआरके प्लस। दीर्घ दिनर विरति पर पठान चलचित्र माध्यम पर्दा को फेरिबाकु प्रस्तुत बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान फिल्म तांको प्रथम लुक सामना को आसी सारिछि। तेबे पठान व्यतीत शाहरुख निज प्रशंसकों को आउ एक खुशी खबर देइछंती। शाहरुख ट्वीट करी एही उपहार विषय रे सूचना देइछंती। सेही उपहारटी होछि शाहरुखଙ୍କ नुआ ओटीटी आप। खूब शीघ्र आसुछि किंग खानଙ୍କ निजस्व ओटीटी आप एसआरके प्लस। एसआरके प्लस कमिंग सून पोस्टर सह शाहरुख लिखिछंती किछि किछि हेबक जाउछि ओटीटी दुनिया रे। शाहरुख तांको उपहार विषय किछि कहिबा पूर्वरु सलमान खान तांको अभिनंदन जणाइबा सह शाहरुखଙ୍କ नुआ ओटीटी चैनल एसआरके प्लस रो रहस्य उन्मोचन करिसंती। या सहित सामाजिक गणमाध्यम रे शाहरुखଙ୍କ घोषणा को नहीं यूजर्स अनुमान ठीक बोली साब्यस्त होईछि। नंबर 18 युद्ध रे रूस को बेजिंग को सहाय्य करिबो बोली मिथ्या प्रचार करुछि अमेरिका कहिला चीन। लागू होइथिबा कटकणा एड़ेई बेजिंग जदि यूक्रेन युद्ध रे रूस को सहाय्य करे तेबे निश्चय तार परिणाम भोगिबो बोली युक्तराष्ट्र अमेरिकार जातीय निरापत्ता उपदेष्टा जेक सुलिवान चेतावनी देइथिले। एहाको एक मिछ खबर बोली कहिछि चीन। रूस यूक्रेन युद्ध रे चीन रूस को कोनोसी प्रकार सहाय्य करिवार नाही बोली चीन रो वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु स्पष्ट होईछि। चीन रो वैदेशिक व्यापार मंत्रालयर मुखपात्र जाओ लिजियान कहिसंती चीन चलिथिबा रूस यूक्रेन युद्ध रे रूस को अस्त्रशस्त्र क्षेत्र में कोनोसी प्रकार सहाय्य करिबो नाही। एने अमेरिका मिथ्या प्रचार से आहरी मध्य कहिसंती जे यूक्रेन प्रसंग में चीन अभिमुख्य स्थिर एवं स्पष्ट। आमे सर्वदा शांति प्रतिष्ठा रे विश्वास रखु। अन्य पक्षरे सोमवार रूस मध्य कहिथिला जे से चीन रो सहाय्य लोड़े नाही। यूक्रेन विरोध में युद्ध करिबा पई तार निजस्व सामर्थ्य यथेष्ट। नंबर 19 विपर्जय पर सिद्धू को बाहर रास्ता देखिले सोनिया। विधानसभा निर्वाचन विपर्जय पर एक्शन मोड को आसिछंती कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। पंजाब रे दलर शोचनीय पराजय पर राज्य कांग्रेस मुख्य नवजोत सिंह सिद्धू को इस्तीफा देवाकू कहिसंती सोनिया। एहा बाद आउ 4 राज्यर उत्तर प्रदेश गोवा उत्तराखंड और मणिपुर कांग्रेस मुखिया मानक मध्य निज निज पदर इस्तीफा देवाकू सोनिया निर्देश दैछंती। निकटरे एही 5 राज्यर विधानसभा निर्वाचन रे रिजल्ट प्रकाश पाइथिला। एथिरे कांग्रेस शोचनीय पराजय वरण करिछि। एपरिकी दल क्षमतार थिबा पंजाब रे मध्य गादीच्युत होइथिला। एहाकू दृष्टि रे रखी सोनिया गांधी समस्त 5 राज्यर कांग्रेस मुखिया मानक इस्तीफा देवाकू कहिसंती। नंबर 20 महानदी को पुनर्जीवित करिबा पई डीपीआर। महानदी समेत देशर 13टी प्रमुख नदी को पुनर्जीवित कराजिबो। एथिपई प्रस्तुत विस्तृत प्रकल्प रिपोर्ट काली उन्मोचित होईछि। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा एहाको प्रस्तुत करा जाईछि। एथिपई केंद्र जंगल परिवेश जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
और नेशनल आफरेस्ट्रेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड पक्षर पांठि व्यवस्था होता 13टी नदी को पुनर्जीवित करने 4टी भाग में अर्थ विनियोग हो। महानदी होइथिबा योजना बाबद 4टी भाग में मोट 1370.28 कोटी टंका खर्च हो। यह द्वारा महानदीर जैव परिवेश को सुरक्षित करा सह अन्य बहु सुफल मिल। योजना को कार्यकारी करने संपृक्त राज्य माने 610.42 कोटी टंकार खर्च बहन करेंगे। एथिपाई ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पक्षर एकाधिक पदक्षेप नियाजिबो। नंबर 21 8 वर्ष मध्य कौन बंगाड़ी को कैबिनेट पाइया देना मोदी शाह कहले बाबुल। पूर्वतन केन्द्रमंत्री बाबुल सुप्रियो केंद्र सरकार पर प्रश्न उठाई। 8 वर्ष धरी केन्द्र में बीजेपी सरकार थिले मध्य कौनसी बंगाड़ी को केन्द्र कैबिनेट रे काहेकि स्थान मिलना बोली सुप्रिया प्रश्न करिसेंती। सुप्रियो कहिसेंती गत 8 वर्ष मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह केबे भी अनुभव करि नाहांती जे जने बंगाड़ी को कैबिनेट मंत्री कराजिबा उचित। सेमाने भाबंती कि बंगीय लोक माने कैबिनेट मंत्री हेबो योग्य नुहंती। बाबुल सुप्रियो कहिसेंती जे उत्तर भारतर दल सबुबेले बंगीय मानक अणदेखा करुछंती। मते लोकंक सेवा करिवार सुजोग देइथिबारु मु ममता बनर्जी को धन्यवाद देबाकू चाहूछि। नंबर 22 दुई सांबादिकों को इफ्को इमका पुरस्कार। भारतीय जनसंचार संस्थानर पुरातन छात्र संसद ओडिशा शाखार 10म वार्षिक सम्मेलन कु कनेक्शन 2022 अनुष्ठित हो जाइछि। भुवनेश्वर स्थित एक होटेल रे आयोजित यह कार्यक्रम में 6ठ इफ्को इमका पुरस्कार प्रदान कर जाइछि। वरिष्ठ सांबादिका शारदा लाहांगीर को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर और भारतीय भाषा रिपोर्टर ऑफ द ईयर भावे ज्योतिस्मिता नायकों को पुरस्कृत कर जाइछि। नंबर 23 22 रु 4 दिन मद बिक्री बंद। पौर निर्वाचन को दृष्टि रखी राज्य सरकार चलित मास 22 तारिख समग्र राज्यर 106टी पौरांचल और 3टी महानगर निगम अंचल में 4 दिन ड्राए डे घोषणा करिसेंती। एही दिनगुड़िक एसबू सहरांचल में मद बिक्री उपर कटकणा जारी होइछि। एपरिकी कौनसी होटेल, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान रे भी मद बिक्री होई परिबो नाही। मार्च 22 तारिख अपराह्न 5टारे पौर निर्वाचन प्रचार शेष होउथबा बेले मार्च 24 तारिख में भोट और 26 तारिख में भोट गणति रही। तेणु प्रचार शेषठू 26 तारिख में भोट फलाफल शेष पर्यंत एसबू सहरांचल में मद बिक्री होई परिबो नाही। सेहीपरि व्यक्तिगत भावे उक्त अवधि में बिना लाइसेंस रे अधिक परिमाणर मद रखिथिले अबकारी आईन अनुसार कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। एसबू को दृष्टि रखी पौर निर्वाचन हेबाकु थिबा अंचलगुड़िक अबकारी पुलिस और जंगल कर्मचारी द्वारा मिलित भावे चढ़ऊ जोरदार करने को जिलापाल मानक परामर्श दी जाइछि। नंबर 24 राजधानी रे विकटाड़ शब्द करुवा 51टी साइलेंसर जबत। कमिशनरेट पुलिस एक स्वतंत्र टीम पटिया छकरे थिबा बनदुर्गा काइनेटिक वर्ल्ड अर्मान बाइक वर्ल्ड स्पेयर पार्ट्स शोरूम रे चढ़ऊ करिछि। भुवनेश्वर डीसीपी उमाशंकर दासଙ୍କ निर्देश क्रमे विकटाड़ शब्द करुवा बुलेट साइलेंसर जबत पई एही चढ़ऊ चलिछि। एथिरे शहीदनगर, चंद्रशेखर और इन्फोसिटी थाना सहित ट्राफिक पुलिस वरिष्ठ अधिकारी माने सामिल होइथिले। पटिया बनदुर्गा काइनेटिक वर्ल्ड रु 21टी और डमणा अर्मान बाइक वर्ल्ड रु 30टी विकटाड़ शब्द करुवा साइलेंसर जबत करिछि कमिशनरेट पुलिस। सूचनायोग्य जे आगुरी एभली विकटाड़ शब्द करुवा बाइक और बुलेट चढ़ाइबा उपरे रोक लगैथिला कमिशनरेट पुलिस। शब्द प्रदूषण को नियंत्रण पर राजधानी रे किछि गाड़ी जबत भी होइथिला। एबे विकटाड़ शब्द करुवा साइलेंसर बिक्री उपरे रोक लगैबाकू कमिशनरेट पुलिस उद्यम आरंभ करिछि। नंबर 25 यूक्रेन को अस्त्रशस्त्र देव अमेरिका। शरणार्थी को करिब स्वागत। यूक्रेन उपरे रूसर घन घन आक्रमण जारी रही। दुई देश मध्य घमघट युद्ध में शह शह संख्यार सैनिक और साधारण लोकंकर मृत्यु हेलाणी। एहारी भितर रूस विरोध में लड़िबाकू यूक्रेन को अस्त्रशस्त्र जोगाण पर अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन घोषणा करिसेंती। एसह अमेरिका रे यूक्रेन शरणार्थी को रहिबा लागि अनुमति देबाकू निष्पत्ति नैछंती बाइडेन। सेमानंकू अर्थ, खाद्य और अन्य मानविकता सहायता देबाकू घोषणा करिसेंती बाइडेन। फेब्रुआरी 24 रु रूस और यूक्रेन मध्य युद्ध जारी रही। नंबर 26 पाकिस्तान रे मिजाइल पड़िबा घटना। भारत सपक्ष में बाहरिला अमेरिका। भारत सपक्ष में बाहरिला अमेरिका। भारत को कला समर्थन। पाकिस्तान रे भारतीय मिजाइल पड़िबा घटना रे मुह खोलिछि अमेरिका। भारतर किछि भूल नाही, यह केवल आकस्मिक घटना थिला। यह अजाणତରେ होइथिबा नै यूएस कहिछि। अमेरिका वैदेशिक मुखपात्र नेट प्राइस कहिसंती जे यह केवल एक दुर्घटना अटे। टेक्निक रे कोनोसी त्रुटि पई एपरि होइथिला। यह आकस्मिक घटना व्यतीत आउ किछि नुहे। जानिशुनी भारत पक्षर आक्रमण करा जाई नाही। नंबर 27 यूक्रेन रूस युद्ध में गलाणी 1761 साधारण लोकों जीवन कहला जातिसंघ। जारी रही रूसिया यूक्रेन मध्य युद्ध। दुई देश मध्य चली युद्ध में 1761 साधारण लोक मृताहत होती। 1761 साधारण नागरिक मृताहत होता नहीं जातिसंघ सूचना देइछि।
ଜାତିସଂଘର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯୁଦ୍ଧରେ 636 ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1125 ଜଣ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବସୁଛି ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ। ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ 4 ଥର ବୈଠକ କରିସାରିଲେଣି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ନମ୍ବର 28 ୟୁକ୍ରେନର ରିଭନେର ଟିଭି ଟାୱାର ଉପରେ ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଆକ୍ରମଣ, 19 ମୃତ। ୟୁକ୍ରେନର ରିଭନେରରେ ଥିବା ଏକ ଟିଭି ଟାୱାର ଉପରୁ ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମ୍ରେ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 9 ଜଣ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭିଟାଲି କୋଭାଲ କହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ଆହୁରି ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ୟୁକ୍ରେନର ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜଧାନୀ ରିଭନେରରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି। ରିଭେନ ପୋଲାଣ୍ଡ ସୀମାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ରିଭନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଅନେକ ୟୁକ୍ରେନବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର 29 ବଦଳିଲା ଆଇପିଏଲ୍ ନିୟମ, ଏବେ ଇନିଂସ ପିଛା ମିଳିବ 2ଟି DRS। 2022ର ଆଇପିଏଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ କିଛି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରତି ଇନିଂସରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବଦଳରେ 2ଟି DRS ମିଳିବ। 2018 ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ DRSକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ମେରିଲବୋର୍ନ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା କ୍ୟାଚ୍ ନିୟମକୁ ବିସିସିଆଇ ନୂଆ ଆଇପିଏଲ୍ ନିୟମରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏମ୍ସିସିର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଟର କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବଦଳିବ ନାହିଁ ଓ ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ରହିବେ। ଯଦି କ୍ୟାଚ୍ ଓଭରରେ ଶେଷ ବଲ୍ରେ ହୁଏ ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବଦଳିବ। ନମ୍ବର 30 ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ କବାଡ଼ି ଖେଳାଳି ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା। ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କବାଡ଼ି ଖେଳାଳି ସନ୍ଦୀପ ନଙ୍ଗଲଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଜଲନ୍ଦରର ମାଲିୟାନ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କବାଡ଼ି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରାୟ 20 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଜଲନ୍ଦର ଡେପୁଟି ଏସ୍ପି ଲଖୱିନ୍ଦର ସିଂ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। 20 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ 8ରୁ 10ଟି ବୁଲେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 10ରୁ 12 ଜଣ ମାଲିୟାନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।